Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. I hope, and I think I don't even need to hope, anybody who's reading the newspaper, anybody who's on social media, anybody who is watching the news knows that we are at a very dangerous cross point. आज दुनिया एक बड़े खतरनाक क्रॉस पॉइंट पे है. In the background is the Israel-Iran war, and now things have become that dangerous that US also has to jump in. इसके आगे क्या होगा, वी रियली डोंट नो. बट as concerned Indian citizens, as knowledgeable people, as those who are really interested in knowing what is happening around the world, one must know what is the chronology, what are the timeline, and what is the events which have led us up to this dangerous point. तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा इसराइल ईरान वॉर के बारे में बता दूंगा. इनफैक्ट दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज मैं तुम्हें एग्जैक्टली बता दूंगा कि वाई डिड दिस हैपन ऑल्सो. हम इस पॉइंट पर आए ही कैसे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए. क्या ये सडनली अचानक दीज आर बिकम ब्लड थर्स्टी एनिमीज? नो. ये क्या है मुद्दा पूरा. इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस कंप्लीटली. So before we start, this is the background why I made this video. Israel-Iran latest is Trump says no ceasefire as attacks on Tehran continue. G7 summit say US president has come back sooner than expected, and US अगर enter कर रहा है in this ring, then it is going to be a very dangerous escalation which I am sure everybody is understanding. लेकिन ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ? What are the nuances of this entire dispute? Let's try and understand in detail. इससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. प्लीज रिमेंबर माई कोड SIDLIVE SIDLIVE फॉर ज्वाइनिंग so many courses and so many programs of an academy जो तुम्हें हेल्प करेंगे to become, at least give yourself a realistic chance to become an IAS officer. If you want to join my optional course which I teach on an academy, that is PSIR, Political Science International Relations. Also we have Rankers Success Program at just rupees 1, in which UPSC के rankers will guide you through this entire process of trying to crack this exam. Use my code SIDLIVE SIDLIVE and join us. Choice तुम्हारी है. Make sure that you do this. Please remember these are very reasonable prices but all for a limited time period. आज का वीडियो. सो तो समझ यू वांट टू ज्वाइन. एक और तरीका है, तुम इस कोड को स्कैन करके भी आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन वन मस्ट नो कि तुम ये सब कर क्या रहे हो. सो यू शुड नो कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन तुम्हें क्या क्या पता चल जाएगा. सो सबसे पहले हो जाएगा कि वाई आर ईरान एंड इजराइल अगेंस्ट वन अनदर. एक और बात पता चल जाएगा व्हाट इज यूएसएस रोल इन दिस वॉर. एंड फाइनली व्हाट इज एट स्टेक फॉर इंडिया एंड एट द वर्ल्ड एट लार्ज. सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुमको ये सारी चीज़ें मालूम होगी. Make sure that you drop in a comment and tell me whether you have enjoyed and you've understood something or not. But please keep politics away. अपने religious और अपने personal sentiments को दूर करना. Let's study this as completely an international relation between two countries. तो इसको आराम से as a student पढ़ते. Let's try and understand the entire subject. So सबसे पहले the story of Iran-Israel conflict. One fine day, if God permits, मैं तुम्हें एक पूरा लंबा चौड़ा 3-4 घंटे का मैराथन वीडियो बता दूंगा विच विल टेल यू द स्टोरी ऑफ इजराइल इन मिडल ईस्ट. बट एज ऑफ नाउ लेट अस ट्राई एंड फोकस ऑन ईरान एंड इजराइल एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. सो सारा का सारा स्टोरी विल चेंज. दैट पॉइंट इन टाइम, दैट डिवाइडिंग ईयर वॉज 1979. इस ईयर को याद रखना. Everything changed from that moment, which is the March 30th and 31st का referendum which happened in Iran, और 1979 का वो एक ह्यूज मोमेंट के पहले ईरान और इसराइल के रिलेशनशिप कुछ और थे एंड ईरान और इसराइल के रिलेशनशिप अचानक कुछ और हो गए फ्रॉम दैट डे. 1979 से पहले दीज रिलेशनशिप्स वर अमेजिंग. बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स थे बिटवीन ईरान एंड इसराइल एंड देयर वर मेनी रीजंस फॉर दिस.
ईरान और इसराइल एक दूसरे के लिए बने थे. इट वॉज लाइक कि दे वर जस्ट मेड फॉर वन अनदर, मैच मेड इन हेवन. ईरान के पास ऑयल था, इसराइल के पास उस टाइम पर, वो उस टाइम भी ऐसा ही था, टेक्नोलॉजी थी, मिलिट्री वेपन्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दैट वाज अवेलेबल. इस साइड पर इसराइल में जब सिचुएशंस आ रही थी, इसराइल एक टाइम तक इजिप्ट के एंटी था, और अदर इजिप्ट इसराइल को प्रेशराइज करता था. गामल अब्दुल नसर ने इंश्योर किया था, ही बिकेम द अरब हीरो, और उसने इंश्योर किया था कि पूरा अरब वर्ल्ड इसराइल के अगेंस्ट हो जाए. एंड दे वांटेड टू गो फॉर एन ऑल आउट वॉर, और इनफैक्ट हुआ भी था. द 1967 सिक्स डे वॉर हुआ था. ऑफ कोर्स इसराइली उसमें जीत गया था, लेकिन उस टाइम पर इसराइल के लिए एक मेजर प्रॉब्लम ये हो गई थी कि सुएज कनाल ब्लॉक कर दिया गया था. जब सुएज कनाल ब्लॉक हो गया था तो इसराइल को जो भी ऑयल चाहिए था वो कहीं से मिल नहीं रहा था. इट वॉज कंप्लीटली getting all its oil source from Iran, and Iran was more than happy helping Israel, because इसराइल से उनको टेक्नोलॉजी मिलती थी, इसराइल से उनको मिलिट्री वेपन्स मिलते थे, ऊजी ऐसे ऐसे सब मशीन गन्स जो कि उस टाइम पर हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वेपन्स थे, वो आराम से इसराइल से मिल जाते थे. ऑल्सो ईरान फाउंड इन इसराइल अ वेरी गुड एलाई टू काउंटर सम कंट्रीज जो उनको लगता था, बिकॉज प्लीज रिमेंबर मिडिल ईस्ट में एक शिया सुन्नी कॉन्सेप्ट भी है. सो दे थॉट कि हमें तो पूरा अरब वर्ल्ड से दैट शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट में, ईरान सिंस वाज एन शिया कंट्री, उसको लगता था इसराइल तो है ही हमारे साथ, सो व्हाई आर वी वरिड. In a way, it was a very beautiful relationship. And please understand, whenever you write Israel, within bracket, you have to understand United States of America, because Israel is completely supported by USA. And wherever you write USA within bracket, you write the entire Western Europe and NATO and so on and so forth. So इनको तो बहुत ही अच्छा opportunity था. So it was a completely beautiful relationship and it went on for a while. सो 1979 में ऐसा क्या चेंज हुआ? पहले सब कुछ ठीक ठाक था जब तक मोहम्मद रेजा शाह पहलवी इनके शाह थे, एंड ही वॉज अ वेस्टर्न एजुकेटेड पर्सन एंड ही वॉज प्रो वेस्टर्न. उस टाइम तक ईरान एंड इसराइल का बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप था. कॉमन इसराइल कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा कॉमन फैक्टर होता है आईआर में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, राइट? सो इट इज़ वेरी सिमिलर. सो एडवर्सरी का एडवर्सरी बिकम्स अ गुड फ्रेंड. So Egypt and Iraq became a common adversary to both Israel as well as Iran, and these guys were having a beautiful relationship. Be that in economic, be that in military or intelligence cooperation, they were having mutual interests. In fact, the entire oil source from the Ilyat Ashkelon pipeline company, which was established in 68, ये कितना easily ईरान को का ऑयल ऑल द वे टू इसराइल सप्लाई कर रहा था, कंसिडरिंग कि उसी दौरान पर गामल अब्दुल नसर ने, इजिप्ट का जो प्रेसिडेंट था, उसने उस टाइम पर इसराइल के लिए प्रॉब्लम कर दिया था बाय क्रिएटिंग अ ब्लॉकेड अराउंड सुएज कनाल. दिस व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू. फिर क्या हुआ? 1979 में समथिंग स्टार्टेड हैपनिंग, और उससे थोड़ा सा पहले नंबर वन, पहलवी वॉजन टू वेल, वो सिक हो गए, उनकी तबीयत खराब होने लग गई, और उनका द ग्रास्प ऑन द ईरानियन गवर्नमेंट धीरे धीरे कम हो गया. एंड उसी की वजह से उस टाइम पर ईरान में एक इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, और द इस्लामिक रेवोल्यूशन में अयतुल्ला रुहोल्ला खुमैनी वो आ गए और उन्होंने गवर्नमेंट को अपने कब्जे में ले लिया. इस इस्लामिक रेवोल्यूशन से ईरान अब एक बहुत ही जबरदस्त चेंज देख गया. क्यों? क्योंकि अचानक वहां पर अब एक इस्लामिक लॉ इस्टेब्लिश हो गया. इट बिकेम द इस्लामिक स्टेट नाउ कंप्लीटली. तो इनफैक्ट ईरान आज भी उसे सेलिब्रेट करता है, ओके, कि उनको ऐसा लगता था कि ये यूएस बैक पहलवी खत्म हुआ और हमारा अपना रेजीम स्टार्ट हो गया. दिस वॉज अ रीजन. दिस वॉज मार्च 30th एंड 31st को ईरान के लोगों ने खुद ने इसको फैसला करके इसको डिसाइड किया था. यूएस इसको मान कर नहीं तैयार है. यूएस बोलता है, यूएस इज इट्स ओन नैरेटिव, यूएस सेज कि ये फेयर रेफरेंडम नहीं हुआ था. आइदर वेज, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये हो गया एंड द एंटायर थिंग चेंज. उससे पहले जब तक कि ईरान, ना प्लीज अंडरस्टैंड वेरी क्लोजली, वॉच व्हाट आई एम टेलिंग यू,
उससे पहले जब ईरान वॉज प्रो वेस्ट, जब तक यूएस और इसराइल इनको सपोर्ट करता था, तब यूएस ने इनके लिए एक न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टैब्लिश कर दिया था, विच वॉज द सपोजिटली ओनली फॉर सिविल न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन। इस प्रोग्राम को एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम बोला जाता है, और 1967 से ही ईरान के पास यूएस ने ये सप्लाई कर दिया था, एंड उनके पास ये वेपन पड़ा था। नाउ प्लीज, न्यूक्लियर रिएक्टर पड़ा था, बट प्लीज रिमेंबर, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर था, दिस वाज ओनली सपोज टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी फॉर सिविल पीसफुल यूज। 1979 किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि 1979 में अचानक इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाएगा एंड थिंग्स विल चेंज। थिंग्स वेंट सो साउथ कि 1979 नवंबर 4 को ईरानियन स्टूडेंट्स ने यूएस एम्बेसी को कब्जा कर लिया, और एक 444 डे हॉस्टेज क्राइसिस स्टार्ट हो गया था। तो उस टाइम पे 50 अमेरिकन को, अराउंड 50 अमेरिकन को उस टाइम पर, ना प्लीज अंडरस्टैंड, एम्बेसी दुनिया की सबसे सेफ जगह होनी चाहिए फॉर एनीवन। एक एम्बेसी में जो स्टाफ के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो एम्बेसडर हो, चाहे डिप्लोमेट्स हो, चाहे जूनियर लोग हो, उसको संभालने की जिम्मेदारी उस कंट्री की जरूर होती है। इट हैज टू इंश्योर कि जो भी एम्बेसी बनाएगा वहां पर ऐसा कुछ ना हो जाए कि वहां के लोगों की जान माल पर खतरा आ जाए। लेकिन नाउ यू रियलाइज कि पूरा का पूरा इस्लामिक रेवोल्यूशन होने के बाद अब ईरान के गवर्नमेंट का यूएस की तरफ एंटी या फिर होस्टाइल बिहेवियर इतना ज़्यादा हो चुका था कि 444 डे ये ईरानियंस ने, उस स्टूडेंट्स ने ये डिप्लोमैट्स को हॉस्टेज बना के रखा। इससे जो रिलेशनशिप है सडनली वेंट डाउन। नाउ यूएस अंडरस्टूड कि ये वो कंट्री नहीं रही जिनके साथ इन्होंने पहले रिलेशनशिप्स बनाए हुए थे। व्हेन आई से यूएसए, ऑलवेज अंडरस्टैंड ब्रैकेट में इजराइल, एंड व्हेन आई से यूएसए एंड इजराइल, ऑलवेज अंडरस्टैंड ब्रैकेट में वेस्टर्न यूरोप। सो दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। 2002 में अब वेस्टर्न इंटेलिजेंस सर्विसेज को यह समझ में आने लग गया कि ईरान जो है वो यूरेनियम की एनरिचमेंट करने लग गया है बहुत ज़्यादा। सी, टू अंडरस्टैंड कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर सिविल न्यूक्लियर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पावर, और उसी को वेपनाइज करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ यूरेनियम एनरिचमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है अगर कोई कंट्री उसको सिर्फ एक सिविल न्यूक्लियर प्रोडक्शन के फॉर्म में यूज़ कर रहा है। लेकिन 2002 में वेस्टर्न इंटेलिजेंस, सीआईए, मोसाद, इनको पता चल गया कि जो ईरानियंस है वो लोग नतान्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही यूरेनियम को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दे अंडरस्टूड एंड दे कन्फ्रंटेड ईरान कि वी गॉट यू ब्रदर, व्हाट आर यू डूइंग, तुम कर क्या रहे हो, हमें सब कुछ पता है। इतना यूरेनियम एनरिचमेंट की अगर तुम्हें जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स यू हैव सम अदर आइडियाज, दिस इज नॉट मियरली फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड सिविल न्यूक्लियर प्रोडक्शन फॉर पीसफुल मीन्स। 2003 में अंडर प्रेशर ईरान ने सस्पेंड कर दिया यूरेनियम एनरिचमेंट को। नाउ दिस वाज अंडर प्रेशर। नाउ जैसे ये सस्पेंड हुआ, ईरान में इंटरनली एक ह्यूमन क्राई स्टार्ट हो गया, ओहो तुम तो प्रेशर में आ गए हो, तुम लोग वेस्टर्न प्रेशर में आ रहे हो, एंड दैट इज वाई यू आर नाउ लिसनिंग टू दिस आर्म ट्विस्टिंग बाय द वेस्टर्नर्स। ये होते कौन है हमको बोलने वाले कि तुम हम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करते, कंसिडरिंग कि इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है। बाय दिस टाइम ईरान और इजराइल के रिलेशनशिप्स हैड स्टार्टेड गोइंग डाउन। नाउ 2006 में ईरान में बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक प्रेशर एंड ऑब्वियसली कुछ उसके एलाइज की तरफ से भी थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा, उसने बोला कि नो नो, हम लोग रीस्टार्ट करेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट। और प्रेसिडेंट महमूद अहमदीनेजाद ने यही बात बोला कि इसको हम लोग अब, अहमदीनेजाद सॉरी, उन्होंने बोला कि हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। ये वेस्टर्नर्स होते कौन है टू क्रिएट अ प्रेशर अगेंस्ट अस। बाय दैट टाइम एज आई टोल्ड यू, ईरान ने इजराइल को एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर कर दिया था। इनफैक्ट ईरान इजराइल को लिटिल सेटन, अगर आप इसको क्रिश्चियन लैंग्वेज में बोलोगे तो सेटन, और अगर आप नॉर्मल बोलोगे तो शैतान, और वाइल यूएस को द बड़ा शैतान डिक्लेयर कर दिया गया था कि ये लोग हमेशा हमारे एंटी रहते हैं। सो इस टाइम तक ईरान और इजराइल का वो जो ब्यूटीफुल रिलेशनशिप था, इट हैड ऑलरेडी गॉन डिसअपियर्ड, एंड नाउ ये लोग एनिमी बन चुके थे।
इनफैक्ट 1982 में जब इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया था तो ईरान की जो न्यू रेजीम थी उसने हिजबुल्ला नाम के एक मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। ना सिर्फ सपोर्ट करना स्टार्ट किया, एज इन डिप्लोमेटिकली उसको फंडिंग करनी स्टार्ट की, उसको ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। लेटर ऑल्सो ये ईरान हमास, जो कि आपने अभी अभी बड़ा रिसेंटली सुना होगा, जो गाजा में जो पूरा का पूरा मिलिटेंट ग्रुप था, उसको भी ईरान ही सपोर्ट करता है। और येमेन के हूतीस जो कि एक्चुअली फिर वेस्ट के अगेंस्ट है, वो भी ईरान सपोर्ट करता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग कि ऑल्दो द ग्लव्स वर नॉट कंप्लीटली ऑफ, अभी इस तरह से पूरा फुल फ्लेजेड वॉर नहीं चल रहा था, लेकिन प्रॉक्सी वॉर शुरू हो चुका था। एंड इट वॉज नो सीक्रेट दैट ईरान इज सपोर्टिंग हिजबुल्ला, Iran is supporting Hamas, and Iran is supporting the Yemen Houthis. So you can read hundreds of this part. और इसमें मेरे ख्याल से Iran is also not somebody who's backing out. Iran comes out openly in favor of these कि yes we are doing this because Israel से हम डरते नहीं और Israel हमारा enemy number 1 है. Israel knows that, Iran knows that, so there's a proxy war going on, and it is just a matter of time. So it was not if, it was only when कि ये चीज और जब ज्यादा खराब होगी। प्राइमरी प्रॉब्लम इज न्यूक्लियर प्रोग्राम। सी, जिस भी कंट्री के पास एक रीजन में या एक नेबरहुड में न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसके पास डिसप्रपोर्शनेट एडवांटेज हो जाता है। तुम लड़ते रहो, तुम जितने मर्जी टैंक्स बना लो, जितने मर्जी मिसाइल्स खड़े कर लो, जितने मर्जी कमांडोज खड़े कर लो, वन न्यूक्लियर बॉम्ब इज मोर देन इनफ टू टेक ऑल द एडवांटेज टुवर्ड्स यू and make it an impossible victory for the other one. ये exactly यहाँ पर है। In the Gulf area, the Mid East area, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, इसराइल के पास 100% न्यूक्लियर बॉम्ब है। Now this is something that has been pinching Iran for all this while, कि अगर it comes, जैसा आज हो ही गया, अगर it comes to full fledged war, तो इसराइल और ईरान में इसराइल के पास एक डिसप्रोपोर्शनेट एडवांटेज है। इट कैन न्यूक ईरान एंड दैट विल बी गेम ओवर। यहां पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की लड़ाई है, यहां पर वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन जीतेगा, कौन डोमिनेट करेगा। इनफैक्ट ये लाइफ एंड डेथ का पॉइंट है। नाउ ईरान नोज दैट Israel has a nuclear bomb. Iran knows that it requires quite a bit of work to be able to create a nuclear bomb. अभी उसके पास न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर एनर्जी बना सकता है, लेकिन क्या वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है? There are a million people who would say yes and there are a million thoughts who would say no. US believes, Israel believes कि a point of no return आ चुका है या फिर आने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के खुद के वर्ड्स है दैट हमने अटैक करना इसीलिए इस टाइम पर जबरदस्ती हमारे सर पे आ गई ये बात, बिकॉज अगर आज हमने अटैक नहीं किया तो ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाएगा टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वो टिपिंग पॉइंट पे है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे है। वंस ईरान गेट्स न्यूक्लियर बॉम्ब, देन यहां पर एक अलग ही हालात बन जाएगा, बिकॉज ईरान इसराइल को, ईरान वेस्ट को, और ईरान फॉर दैट मैटर मेनी ऑफ द अदर अरेबिक कंट्रीज को एक जबरदस्त एग्जिस्टेंशियल थ्रेट दे सकता है। एंड दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। सो 2010 में जब, इनफैक्ट 2009 में ही हुआ था, 2010 में तो ये पता चला था, 2009 में एक कोवर्ट ऑपरेशन भी किया गया था। तो यूएस और इसराइल ने मिलकर एक वायरस, स्टक्सनेट कंप्यूटर वायरस, ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स में डाल दिया था और उनके के सारे सेंट्रीफ्यूजेस बर्बाद कर दिए थे। यू कैन रीड मोर अबाउट दिस। सो ये सीआईए और मोसाद का एक बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन था। तो ऐसा नहीं है कि अचानक आज ही कुछ अटैक हो गया, सर्टनली नॉट। पहले भी बहुत बार कोशिश की गई कि किसी तरह से ईरान के इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद किया जाए, किसी तरह से इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद किया जाए। ईरान के साइंटिस्ट को टारगेट करके मार दिया जाता है, ईरान को किसी ना किसी तरह से रोका जा रहा है द न्यूक्लियर प्रोग्राम को करने से। अब जो रिसेंटली हुआ है, जिसको बोला गया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन, वो इसराइल ने प्रीएम्प्टिव अटैक किया ऑन ईरान। वो अब तुम देख ही रहे हो, चारों तरफ मिसाइल्स गिर रही है, टारगेट किया जा रहा है।
एंड इफ यू पे क्लोज अटेंशन तो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये जो अटैक हो रहा है ये सारा के सारे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे ही हो रहा है. सो मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनी मिस्टेक. इसमें कोई ऐसा नहीं हो रहा है कि कुछ बात पहले नहीं पता थी, पहले भी पता थी कि व्हाट इज पिंचिंग ईरान और व्हाट इज पिंचिंग इजराइल इज नथिंग एल्स बट दिस न्यूक्लियर फैक्टर. सो द एंटायर थिंग, मिसाइल स्ट्राइक्स है, मिलिट्री कमांडर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर सेइंग कि जब तक ये नेसेसरी होगा तब तक हम अटैक करेंगे. अब प्लीज अंडरस्टैंड, अभी तक वॉर कन्वेंशनल है. यहां से भी यानी कि इजराइल से भी मिसाइल्स ही फायर की जा रही है, तो ईरान के पास भी मिसाइल्स है. सो वो भी टेल अवीव पे अटैक कर रहा है, वो भी उनके हाइफा पोर्ट पे अटैक कर रहा है. एज ऑफ नाउ नाउ ये दोनों तरफ से कन्वेंशनल चल रहा है. सो इट इज गोइंग टू बी अ मैच, इट्स गोइंग टू बी अ ब्लो फॉर ब्लो. लेकिन अभी भी ये डिसएडवांटेजेस या फिर डिस्प्रपोर्शनेटली डिसएडवांटेजेस किसी भी कंट्री के लिए नहीं है. दोनों काफी ताकतवर कंट्रीज है. 1920 का 19-20 का फर्क पड़ने वाला है. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू हैपन. लेकिन द आइडिया इज इसराइल ने क्यों लॉन्च किया है. इसराइल ने इसीलिए ये अटैक लॉन्च किया बिकॉज उसको न्यूक्लियर इसका गेम खत्म करना है. और अगर न्यूक्लियर गेम नहीं खत्म होता, द न्यूक्लियर प्रोग्राम इज नॉट ओवर, देन आई होप यू रियलाइज कि इसराइल का ये प्रोग्राम, ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट ही क्यों हुआ, इसका सब ये दिस ऑल बिकम्स अ कंप्लीट नॉनसेंस. क्यों किया गया. तो इसराइल वुड कंटिन्यू टू अप द एंटे. Iran will also continue to up the attack or retaliation, and दोनों ही रुकने वाले नहीं है. सो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि अगर ये ज्यादा बात बढ़ती चली जाएगी तो देयर वुड बी मोर एफर्ट्स फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस. अगर ये मिलिट्री स्ट्राइक्स होने लग जाए, ज्यादा ही बात बढ़ जाएगी, ईरान विल हैव नो अदर चॉइस बट टू अप द एंटे. सिमिलरली इजराइल विल ऑल्सो डू इट. और ये एक डेंजरस क्रॉस पॉइंट हो जाएगा बिकॉज नाउ इट विल बी एन ऑल आउट रीजनल वॉर. यूएस को भी आना पड़ेगा, विच अभी रिसेंटली ट्रंप ने बोला है दैट वी विल कम, कोई सीज फायर नहीं होगा, अटैक्स ऑन तेहरान विल कंटिन्यू. अगर यूएस फुल फ्लेजेड अपना मिलिट्री को लेकर आ जाएगा तो रशिया विल ऑल्सो हैव टू एंटर द पिक्चर. चाइना हु काइंड ऑफ सपोर्ट्स ईरान विल ऑल्सो हैव टू कम टू द पिक्चर. गल्फ नेशंस को रिएक्ट करना पड़ेगा. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यूक्लियर एस्केलेशन. और ईरान ने तो हिंट भी दे दिया है कि अगर तुम हमको पुश करने लग जाओगे तो जो हम लोगों ने साइन किया है, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी विच वाज साइंड वे बैक इन 1968, केम इनटू फोर्स इन 1970, हम उसको भी छोड़ देंगे. एनपीटी से पीछे हट जाने का मतलब है कि आई एम फ्री टू डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर पार्ट. नाउ ये बड़ा मेजर सिचुएशन हो सकता है बिकॉज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो पूरे गल्फ एरिया में हर कंट्री को अपने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट पर का ख्याल रखना पड़ेगा. हो सकता है वहां पर एक न्यूक्लियर रेस स्टार्ट हो जाए. नाउ दिस इज समथिंग विच इज अ बैड न्यूज फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड बिकॉज ऑयल का मेन सोर्स इज मिडिल ईस्ट. ऑयल का रेट ऊपर नीचे कैसे होता है वो हमारे देश की, इनफैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इफेक्ट कर जाता है. वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ यूक्रेन वॉर. अभी तक वो नहीं खत्म हुआ था तो पैलेस्टाइन वाला वॉर, गाजा वाला वॉर हो गया, बीच में कोविड वाला सिचुएशन है से अभी हम निकले नहीं थे. वेयर इज दिस वर्ल्ड हेडिंग टू. वी डोंट वांट टू, मैं वो क्लीशे नहीं बोलना चाहता कि वी वांट टू गो, वी आर एंटरिंग इनटू अ थर्ड वर्ल्ड वॉर और समथिंग ऑन द सॉर्ट. लेकिन वहां से बहुत पहले ही, उससे बहुत पहले की सिचुएशन ही ऐसी हो जाएगी जो झेली नहीं जा सकती. सो वी आर एट अ वेरी डेंजरस क्रॉस पॉइंट एंड इन चीज़ों में यू नेवर नो कि कब मैटर्स गो आउट ऑफ हैंड ऑफ ट्रंप और फॉर दैट मैटर इसराइल और फॉर दैट मैटर ईरान और चाइना और रशिया और नेम वॉट एवर. ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था. एवरीबडी थॉट कि मैटर्स रिजॉल्व हो जाएंगे एंड देन थिंग्स वेंट साउथ विदाउट टेलिंग एनीवन. कभी कभी ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. So we are at a dangerous cross point. The सबसे important is that everyone should understand कि the main thought process है क्या. And as concerned citizens and as people who want to understand IR as it should be, international relations समझ में आना चाहिए. You should understand कि इसका genesis क्या है, इसका timeline क्या है. I hope you have understood.
This is the entire problem, and we don't want this to happen. So अगर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वगैरह खत्म हो रही है, सो वी आर एट अ वेरी मेजर डेंजरस क्रॉस पॉइंट. छोटे से टाइम पीरियड में मैंने तुम्हें ये समझा दिया. वॉच आउट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं तुम्हें इसराइल की पूरी कहानी बताऊंगा. आई विल एक्सप्लेन यू कि क्यों लोगों को, क्यों मिड ईस्ट में इसराइल एक कॉमन फैक्टर हो जाता है. सेवरल वॉर्स एंड सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स. यू शुड नो दिस कि इज इसराइल राइट और इज इसराइल रॉन्ग. यू शुड नो. You will be able to judge that only when you know what is the story of Israel. I hope you have understood and I hope you have enjoyed this. इसको एक और बार मैं फाइनली रिवाइज करवा देना चाहता हूँ. You want to join PSIR, you want to join Ranker Success Program or Mains Program, please use the code SEDLIVE and join an Academy Plus classes. In the words of an Academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.